Assalamu alaikum, dear students. As you know, earlier we have discussed in our lecture first the administration of Aryans. Now we have to discuss some other things about the same topic, in which we have read about the village, their administration. They have a graminy, they have a head, or we call as king. Then they have assemblies such as Sabha and Semiti. Then we talked about the society of the Aryans. The society of the Aryans was divided on the basis of caste. They have 4 castes, that is Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. And now in our topic we are discussing, we will discuss about the work culture, or I may call it work was divided on the basis of caste. Now in our today's lecture, how the work was given to the different castes. In the Aryan society, Brahmanas, they were basically priests. Every kind of religious duty, any kind of religious practice, that was performed by the Brahmanas. जैसे कि आपके यहाँ, उनके यहाँ कोई भी या किसी भी किस्म की मजहबी काम हो, जैसे किसी के यहाँ शादी का, किसी के मरने के ऊपर या मरने पर, या किसी के यहाँ कोई त्यौहार, ये सब काम जो था ये किनके यहाँ था? ये ब्राह्मण्स के यहाँ था बच्चों। जैसे कि वो, उन्हें हम पादरी के आज कहेंगे, वो पादरी थे इनके मजहब के, और ये काम किसी और को नहीं दिया जाता था। जैसे हमने इसे पहले भी कहा था कि वो ट्राइबल एरियाज में रहते थे, डिफरेंट ट्राइबल्स के डिफरेंट विलेज हुआ करते थे। तो सेम इज द केस हियर। जो ब्राह्मण्स होंगे तो उनका एक अपना विलेज होगा, एक अपना ट्राइब होगा, एक अपना ट्राइब होगा, एक अपना विलेज होगा। सेम इज द केस हियर। दे वर लिविंग, they were called Brahmanas because they have the knowledge. They have the knowledge of the Hindu religion, and they were performing the duty of priests. They were doing every kind of they were performing every kind of religious practice, and that was not allowed for the other castes. वो दूसरी जातों के लिए नहीं रखा गया था। उसे किसके लिए रखा गया था? खाली ब्राह्मण्स के लिए। उसके बाद दूसरी बात जो आती है वो शास्त्रियास की आती है। शास्त्रियास बेसिकली दे वर वॉरियर्स, दे वर मेंशनड, or they were given the duty to fight or to be soldiers, to defend their country, their state, their village, their society. And only whenever they have a recruitment, then the people from the Shastriyas were recruited for this job. In other words, in simple terminology मैं आपको ऐसे कहूँगा, जब कभी भी हमें फौज की ज़रूरत होती थी, या फौज जिस तबके से आता था, जिस जात से आता था, वो कहाँ से आता था? वो शास्त्रियास के यहाँ से आता था। जो ब्राह्मण्स थे उनका काम खाली एक था, वो क्या करते थे? दे वर बेसिकली प्रीस्ट्स, वो पादरी हुआ करते थे, और उनका काम मजहब के साथ था। उसके बाद आते हैं शास्त्रियास। शास्त्रियास का काम क्या होता था? वॉरियर्स, fighters. Basically they were called as they have come from the shoulders of the god. Because of that, whether it is a myth or it is a truth, but it is believed in Hindu religion that Shastriyas have come from the shoulders of the god, and that is why they are sad. They have to do the job of warriors. They have to be soldiers. उन्हें फौज में रखा जाता था उन दिनों आर्यन्स के यहाँ। तो उसके बाद तीसरी जो जात आती है वो आती है वैश्यस की। वैश्यस दे वर बेसिकली कल्टिवेटर्स, क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जैसे कि मैंने यहाँ अपने पॉइंट में हाईलाइट भी किया है, दे वर कल्टिवेटर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। दैट मीन्स द growing or the cultivating of land or doing a business or any kind of job. In other words, these people were related with the economy. ये जो लोग थे, ये जो वैश्यस थे, ये किसके साथ है? ये उगाने के साथ हैं, खेती बाड़ी के साथ हैं, तिजारत के साथ हैं, ऐसी दूसरी कामों के साथ कौन लोग हैं? ये वैश्यस हैं। And the number 4th caste, that is Shudras. And Shudras is the one of the lowest, जो सबसे नीचे वाला तबका है, लोवेस्ट है इन द सोशल हायरार्की, दैट इज शूद्रास। इट इज इन, वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्यन्स ऑफ दैट सोसाइटी, आर्यन सोसाइटी। हम किसकी सोसाइटी की बात कर रहे हैं? आर्यन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, उनके विलेजेस की बात कर रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही थी, उनके विलेजेस कैसे थे। तो उनमें जो डिवीजन हुआ था
वो वहां पर जो डिवीजन पाया गया वो किसकी बुनियाद पर था? दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो कास्ट में एक बात जो आती है, जो सबसे नीचे वाली कास्ट आती है वो कौन सी है? लोवेस्ट इन द हायरार्की, जैसे हमारी यहाँ बुक पर लिखा भी गया है, दैट इज इन द लोवेस्ट इन द सोशल हायरार्की, दैट इज शूद्रास। दे वर मेंशनड or they were supposed to do the work of menial jobs. Menial jobs, इससे पहले भी मैंने आपको कहा है कि वो सोशल वो यहाँ जैसे सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे किस्म के काम हैं, इसी के साथ आते हैं। तो ये जो काम थे ये किन के लिए थे? शूद्रास के लिए थे। एंड they were also supposed to live outside the village, not in the village. That means जो शूद्रास थे उनका कोई अपना गांव नहीं हुआ करता था। They were supposed to live outside the villages. Now we have to talk about the domestic life, economic life. Sorry to say, we have to talk about the economic life of Aryans. जो इकोनॉमिक लाइफ किन की थी? आर्यनस की थी। वो उसमें क्या था जिसे हम उर्दू में कहेंगे मईशत, पैसा। जहां तक होता है पैसा कहां से आ रहा था, कैसे आता था, और ये जो जिंदगी में एक अहम काम रुपये से चलता है। तो आर्यन जो थे उनके यहाँ ये पैसा कहाँ से आता था? व्हाट वर द सोर्सेज ऑफ मनी ऑफ आर्यन लाइफ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। वो भी उन दिनों क्या रखते थे? घरों में जानवर रखते थे, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स। जैसे हम आज भी अपने घरों में देखते हैं तो एनिमल्स हम खुद भी पाते हैं, जैसे गाय हैं, बेल हैं, ये शीप्स हैं, गोट्स हैं। सेम इज द केस विद द आर्यन। दे वर आल्सो domesticating or rearing the animals like as cows, bulls, oxen, goats, dogs, sheep. From these animals, first of all, सीधी सी बात है, इनसे हमें दूध भी आता है, तो पनीर भी जिसकी बनाई जाती है, जैसे ये कावज हैं, इनसे, इनके दूध से। तो दूसरी बात है, इनको बेचा भी जाता है। उन दिनों का जो सिस्टम था, जैसे आज हम जो कुछ भी करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, तो हम ऐसे पैसे देते हैं। तो उन दिनों का जो काम था, उन दिनों ऐसा नहीं था। एक किस्म का बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, हर कोई अगर दिया भी जाता था कुछ, तो उसको खरीद फरोख्त, पैसे के बजाय चीज़ में ही खरीद फरोख्त की जाती थी। जैसे कि मैं पैसे ना दे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, जब हमें किसी ननाई के पास जाना होता है था, आज से 10-12 साल पहले की बात है, तो हमारे पास अगर पैसा नहीं होता था तो हम सीधे सूखा चावल लेते थे और वहाँ से लाते थे। या आज भी अगर हम गाँव में देखते हैं तो जब कोई कबाड़ का काम करता है तो वहाँ से बर्तन देता है, तो हम यहाँ से क्या देते हैं? घरों में कबाड़ देते हैं। ऐसी उन दिनों की बात भी है, जैसे कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो कैसे चल रही थी। दे वर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स फ्रॉम देम, दे वर टेकिंग मिल्क, दे मे बी आल्सो एक्सचेंज, द फॉर्म ऑफ एक्सचेंज विल बी इन सच थिंग्स लाइक एज animals or in the form of metals. And the second thing that was important, which we have in the present age, जो हमारे यहाँ आज भी पाया जाता है, that is agriculture, खेती बाड़ी का काम। खेती बाड़ी का काम उन दिनों भी आर्यनस में भी हुआ करता था। और जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में एक और बात है कि वो उन दिनों में भी कैनल्स पाई जाती थी। थ्रू द कैनल्स दे वर इरिगेटिंग देयर फील्ड्स, एंड दोज पीपल वर आल्सो स्पेशलाइज्ड इन द पोल्ट्री, कारपेंट्री, वीइंग एटसेट्रा। ये जो आज हम देखते हैं कारपेंट्री का काम है, या उन दिनों भी पोल्ट्री का काम किया जाता था, तो वो जो आज पाया जाता है वो उन दिनों भी था। जैसे कि एग्रीकल्चर का काम है, पोल्ट्री है, कारपेंट्री है। एंड एट दैट टाइम when we are talking about the economic life of the Aryans, then they have also different metals. They have different metals like as gold, silver, copper, lead, etc. These metals were also present at that time. जो सोना है, सोने की जो कीमत है, या कॉपर है या सिल्वर है, ये आज भी हम देखते हैं। तो उन दिनों भी कॉमन सेंस की बात है, उन दिनों भी इसकी कीमत ठीक ठाक होगी। और ये चीजें असल में दीज आर द वेज ऑफ एक्सचेंज, गुड्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके आज हमारा मोड ऑफ एक्सचेंज जो है वो है पैसा, पर उन दिनों मोड ऑफ एक्सचेंज यही चीजें हुआ करेंगी, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लेड है, या इनकी कॉइन्स भी हुआ करेंगे, गोल्ड की, सिल्वर की या कॉपर की। ऐसी ये जो हमने एनिमल्स की बात की, तो ये एनिमल्स दे मे बी आल्सो मोड ऑफ एक्सचेंज एट दैट टाइम।
जैसे कि हम आज क्या देते हैं, पैसे में एक्सचेंज करते हैं, तो उन दिनों आर्यंस में पैसे अगर कम भी हो सकता था, तो उन दिनों जो एक्सचेंज मोड ऑफ एक्सचेंज होगा वो क्या होता था, वो एनिमल्स होगा या ऐसे ये मेटल्स। और दे हैव आल्सो डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेटल दैट इज आयरन, लोहा। उन्होंने उन दिनों एक दूसरा मेटल जो है वो भी दरियाफ्त किया था, उसका नाम जिसे हम आज भी हमारे यहाँ भी है वो आयरन है। और आयरन इज ए वेरी हार्ड मेटल एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्यंस। और इससे बहुत अच्छे चीज जो है वो बनाए गए थे, जैसे हम यहाँ भी आज भी देखते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, ये किससे बनाई जाती है, आयरन से बनाई जाती हैं। और ये बहुत मजबूत भी हुआ करेगी होती हैं। और मजबूत होने के साथ साथ हम देखते हैं जो दूसरे टूल्स भी हम आयरन से बनाते हैं वो हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल वर्क में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दैट इज़ फॉर द टुडे, इट इज़ फॉर स्टूडेंट्स क्लास 6, 24th of April 2020. Thank you.